صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والے۔ دودھ ہمارے لیے مکمل غذا ہے جو کہ چھوٹوں اور بڑوں کے لیے یکساں مفید ہے، جو قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمارا پیش کردہ مو پیور ملک اسپیشل جو کہ بالکل خالص، ذائقے دار اور مکمل وائٹامن سے بھرپور ہے، آپ کے خاندان کی صحت کا ضامن، صرف اور صرف مو پیور ملک اسپیشل۔ کال فار فری ہوم ڈلیوری، پیشکش مدینہ فارم، فون نمبر 0308322244۔ آن لائن رائڈ میں ایک شاندار اضافہ، آرام دہ اور محفوظ سفر کی ضمانت کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ میں ابھی اپنی رائڈ بک کیجیے اور لطف اٹھائیں اپنائیت کا۔ حکومت پنجاب کی ظالمانہ میڈیا پالیسی کے خلاف لاہور پریس کلب میں اخبارات بچاؤ سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں اخبار مالکان اور قلم مزدوروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ وزارت اطلاعات پنجاب APNS کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے لاکھوں کارکنوں سے رزق اور معاش چھیننے کی سازش کر رہی ہے۔ مقررین نے حکومت وقت کی اس ظالمانہ روش کے خلاف بھرپور جدوجہد کا عہد کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ہر محاذ پر لڑیں گے۔ قائد تحریک کا کہنا تھا کہ ہم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے اس کا انجام اپنے حقوق کے تحفظ سے مشروط ہے۔ انہوں نے پرعزم شرکاء کے پرجوش حوصلوں کو کامیابی کی ضمانت قرار دیا، جبکہ پنجاب پریس کلب کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو کوئی بھی پالیسی بنانی ہے اس کو ایک عام جرنلسٹ کو مد نظر رکھ کر بنانی چاہیے۔ صحافی برادری کو پہلے ہی بہت سے مسائل درپیش ہیں، اوپر سے یہ بے روزگاری صحافیوں کو اندھیرے میں دھکیل رہی ہے۔ اخبار مالکان قلم مزدوروں نے لاہور پریس کلب میں سیمینار کے بعد پریس کلب کے سامنے مختصر احتجاج کرنے کے بعد 14 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیمینار میں شریک ہونے والے اخبار مالکان اور قلم مزدوروں نے احتجاج کا سلسلہ وسیع کرنے اور حکومتی وزراء بالخصوص فیاض الحسن چوہان کے گھیراؤ پر اتفاق کرتے ہوئے میڈیا پالیسی 2020 کو یکسر مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ اشر صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ سلیوٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو، اپنے صحافی کارکنوں کو جو یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بیسیکلی قلم مزدور ہی نہیں بلکہ یہ مجاہد ہے، یہ وہ مجاہد ہیں جو کہ اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بوٹ پالش نہیں کرتے، ان کا جرم یہ ہے، یہ مراعات نہیں لیتے، ان کا جرم یہ ہے۔ یہ لوگ تو صبح نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کو صرف ایک ہی بات کی فکر ہوتی ہے اور وہ ہے رزق حلال۔ تو آپ فوری طور پر یہ جو بڑے اخبارات والے ہیں، APNS والے ہیں، CPNE والے ہیں، وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ چھوٹے اخبارات ہیں۔ وہ بھائی چھوٹے اخبارات نہیں ہیں، چھوٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ APNS والے چھوٹے ہیں، CPNE والے چھوٹے ہیں، جو کہ ان کو چھوٹا کہتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی نہ تو بوٹ پالش کیے ہیں، نہ تو انہوں نے مراعات لی ہے، اور نہ ہی یہ درخواستیں دیتے ہیں کہ برائے مہربانی جو ہے وہ ہمیں CM سے ملاقات کروا دو، ہمیں PM سے ملاقات کرا دو۔ انہوں نے تو صرف اور صرف صبح خبر کی تلاش میں نکلنا ہے اور آپ کو، پبلک کو، عوام کو جو ہے وہ صحیح نشاندہی کرنی ہے ان برائیوں کی۔ تو اس کے بعد بھی اگر یہ حکومت جو ہے وہ اس بات کو نہ سمجھے، پھر عمران خان صاحب، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے ہیں تو لوگوں کو بہت ساری توقعات تھیں، اور خاص طور پہ ہماری جو چھوٹے کارکن ہیں ان کو تھی، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اس خواہشات پہ جو لوگوں کی ان سے توقعات تھی اس پہ پورا نہیں اترے۔ اور اب بھی وقت ہے کہ وہ اب بھی جو ہے یہ چھوٹے، جو جن کو یہ چھوٹا کہتے ہیں، ان اخبارات کو معاشی طور پہ بدحال نہ کریں، ان کے چولہے نہ بجھائیں، کیونکہ اگر انہوں نے فوری طور پہ اس طرح کے اقدامات نہ کیے جس سے کہ خوشحالی آ سکے، تو پھر یہ سوچ لیں کہ حکومت کے تمام وزراء، حکومت کے وزیر اعظم سمیت تمام لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور ان کا گریبان جو ہے وہ ان کارکنوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں میڈیا کا تو ویسے ہی برا حال ہے، بہت سارے ادارے بند ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی وجہ سے، اشتہارات نہ ملنے کی وجہ سے۔
तो छोटे इदारे तो बिल्कुल ही पस्तगी में चले गए हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो छोटे अखबार हैं इनमें भी जो लोग काम करते हैं, 10 करते हैं, 20 करते हैं, उनके साथ इतने ही ख़ानदान हैं। तो ये सोचें कि अगर ये अखबार बंद होंगे तो अपने ख़ानदान का रिज़्क बंद हो जाएगा। उनके लिए कैसे मामला होंगे कि पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर लोग ये याद होगा आपको, ये वही हुकूमत है जिनके लिए रात दिन आप लोगों ने फाइट की है, सड़कों पे हर बंदों को कायल किया है कि तब्दीली आएगी तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। बिल्कुल इनको बड़ी कवरेज दी है, हमने बड़ी कंपेन की है जहाँ इलेक्शन में। तो उसका मकसद ये नहीं था कि हमने तो इसलिए कंपेन की, इसलिए इनको वोट डाला कि ये जब आए हुक्मरान आए तो कोई नई तब्दीली है, नया पाकिस्तान बने। लेकिन ऐसा पाकिस्तान अभी तक नया नहीं बन सका, बल्कि पुराना भी जाता रहा। तो लोग जो हैं बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं और पस्तगी की तरफ जा रहे हैं। तो खुदारा इसके लिए जो है वो छोटे अखबार को इश्तिहारात भी दें और उनको बहाल भी रखें ताकि लोगों का रोज़गार चले। मैं ये कहूँगी कि दुनिया का कोई भी चैनल है या अखबार है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो छोटा नहीं होता। और हम जो जर्नलिस्ट हैं एक टीम है। अगर मीडिया है तो पावर है, अगर मीडिया नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर छोटे से इदारे को भी छेड़ा जाएगा तो पूरा मीडिया जो है ना वो थोड़ा घटेगा, यानी कि वो गुस्सा करेगा। ठीक है, तो बेहतर है मीडिया से ना टकराया जाए। ये गलती कर रहे हैं। कभी भी कोई इदारा नहीं बंद हो सकता। जिना गया था पहले छोटा इदारा था, जंग कहाँ से शुरू हुआ, जियो कहाँ से शुरू हुआ था, एयरवेज चैनल कहाँ से शुरू हुआ था, मुझे बताएं। कोई भी इदारा जो न्यूज़पेपर का छोटा। अच्छा, ARY का लाइसेंस आपको पता है 25 करोड़ रुपए का है, जियो का जो है वो 35 करोड़ रुपए का है। लेकिन अब आम देखिए बात सुने ना, वो आज से नहीं है, जंग जियो जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा है। हम बात कर रहे हैं उन सहाफ़ी की जिसकी तालीम कुछ नहीं है, जिसकी बेचारे की एजुकेशन नहीं है, जिसको पता नहीं है। लेकिन वो इदारे से मुंसलिक तो है ना, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा। नहीं, इदारे से तो है। अब देखिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी करने और है, जो मालकान बन जाते हैं बगैर किसी डेफिनेशन के, उसके बारे में क्या कहते हैं? उनके लिए तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मजदूर के लिए तो वाकई उसका यानी कि रोज़गार ख़त्म हो। देखिए आप क्लिनिक है, अभी डॉक्टर आपने कहा है। जी, मेरा क्लिनिक एक साइड पे है, तो मैं जर्नलिस्ट में 20 साल से काम कर रही हूँ इस फील्ड में। अच्छा, चलें ठीक है, अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो देखिए अब फ़र्क करें, आपका कोई हक मारे तो आपको भी होगा ना। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका इस लाइन से तल्लुक नहीं। चलो एक बंदा 4 साल 3 साल लगा के सीखा है कुछ, उसको तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके क्या कहती हैं आप? देखें जी, बेरोज़गारी तो होनी नहीं चाहिए, पहली बात है इसमें। ठीक है, चाहे वो मीडिया का चाहे वो किसी फील्ड का। अगर बेरोज़गारी है तो जाहिर है वो इंसान को गलत रास्ते पे चलेगा, चाहे वो मीडिया का हो चाहे वो किसी चीज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक कायदे-आज़म से लेकर और इस हुकूमत तक कभी भी जर्नलिस्ट जो है उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई है। और जिस शख्स को डिक्लेरेशन मिल गया ना, जिस शख्स को डिक्लेरेशन मिल गया है वो अखबार का मालिक है जी। और अखबार का जो मालिक है, एक अखबार हज़ारों लोगों के पेट पालता है। मेरी बात सुने, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत किस तरह इन सहाफ़ियों का कत्लेआम करना चाह रही है और क्यों करना चाह रही है। ये आज जो हम सब लोग इकट्ठे हैं, अगर हम सड़क पर आएंगे तो हुकूमत कहेगी कि देखिए तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए। मैं हुकूमत पंजाब की मीडिया पॉलिसी 2020 की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, जिसमें लोकल अखबार रेंज को इन्होंने गला घोंट दिया है। हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इसलिए हम सब, हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही मोटो है, हम सब एक हैं। इसमें कोई नेशनल पेपर नहीं, कोई लोकल पेपर नहीं, अखबार ही है। मैं हुकूमत की इस पॉलिसी की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। खान साहब, रिक्वेस्ट ये है कि आज का एजेंडा जो है वो वज़ीर आला का वो लेटर है जो उसने जारी किया और बहुत सारे अखबारों के इश्तहारात बंद हो गए। उसके लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, प्रेस क्लब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जर्नलिस्ट की बात है, सहाफ़ी की बात है। और मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब जो हैं उनके झंडे के तले, उनके साए तले काजी तारक जनाब, हमारे दुरानी साहब, फैसल दुरानी साहब, इन सब दोस्तों की दावत से आज बाहर शहरों से भी लोग आए हैं, जिनका एहतजाज है वो एक ही एजेंडे पे इकट्ठे हुए हैं कि ये जो हमारे इश्तहारात बंद किए गए, ख़ासकर हमें छोटा अखबार कह के इश्तहार बंद कर दिए गए हैं,
इस पे तमाम लोग, तमाम दोस्त सख्त नाराज़ हैं। आज गवर्नमेंट से ये सब लोग मुतालबा करेंगे कि हमारे इश्तहारात जो हैं वो बहाल किए जाएं। हमारे मज़दूर यूनियन जो है, हमारे जो कलम मज़दूर लोग हैं, उनका रिस्क जो है वो बंद ना किया जाए। अगर हमारी ये बात आज ना मानी गई तो इसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। ये कि हम लोग तो पहले ही दिन रात आवाम के लिए कर चुके हैं। हमें कहीं से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें कोई ज़्यादा सैलरी दी जाए। अखबारात, इश्तिहारात जो मामला तो थोड़े बहुत चल रहे थे वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। हमारे घर के चूल्हे इसी निज़ाम से चल रहे हैं, जो कि हमारे साथ ज़्यादती है। ये मुकम्मल ही हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए। इतनी मीडिया की आवाम कहाँ पे जाएगी? हमारा निज़ाम यहीं पे था, हमारे घर के बच्चे हैं, घर के निज़ाम है, ये कहाँ पे जाएंगे? जो सर से ज़्यादती है इसके बारे में कुछ सोचा जाए। अगर हुकूमत नहीं मानती तो आप सड़कों पे आते हैं? सर हम लोग सड़क पे आएंगे, अपने बच्चे लेके भी आएंगे और खुद भी आएंगे। मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि डमी अखबारात के सबसे बड़े मुखालफ हम हैं। APNS के छतर छाँव तले कह लें, उनके प्लेटफार्म पे मोस्टली जो अखबारात हैं, स्वयं 7 या 8 अखबारात के तमाम अखबारात को मैं और मेरे तमाम दोस्त समझते हैं कि वो डमी अखबारात हैं, जो सिर्फ इश्तिहारात के नाम पर छपते हैं और बिल के लिए ही जमा होते हैं। हम इस मीडिया पॉलिसी को, ये जो गवर्नमेंट ने नाफिज की है, बड़ी जालमाना पॉलिसी है। हम समझते हैं कि इसे वापस लिया जाए और हुकूमत इस वाले से ज़्यादा माफ़ी का ऐलान भी करे। गवर्नमेंट की जो बढ़िया मीडिया वर्कर्स दुश्मनी है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ज़रूरी नहीं है कि नेशनल वाइड होना चाहिए और उसमें कोई ग्रुप हो या कोई माफिया हो या कोई बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियत शामिल हो। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनका भी हक़ है कि वो अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं और अपने लिए कारोबार, या अगर देखो प्रोफेशनल लोग भी जो काम करेंगे, अखबार निकालेंगे, वो भी अपने साथ मैन पावर लगाएंगे, वो भी अपने साथ एक टीम रखेंगे, 20-25 लोगों को साथ रखेंगे, उनका रोज़गार बढ़ता है। तो ये एक ज़्यादती है, जुल्म है, हम इसके खिलाफ पूरे। अच्छा अमान साहब, एक और सवाल कि ये जो खाली डमी अखबार बना के इश्तिहारात लेते हैं, इन पे तो राय नहीं हो देखें इसमें DGPR और PID का अपना माफिया मुलव्वस है। वो क्यों करते हैं इस तरह? क्यों लोगों को इस तरह का रिलीफ देते हैं? ना दें, उनकी डिग्रियां चेक करें, उनके अखबार चेक करें, उनकी मंथली इशार चेक करें। बिल्कुल हम तैयार हैं, अगर हम इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरते ना दें हमें इश्तिहार, लेकिन अगर हम पूरा उतरते हैं तो फिर हमारा हक़ है और हम लेंगे इंशाअल्लाह। वाज़ेह बात है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर आप बड़ों को इश्तिहारात दे रहे हैं तो छोटों का भी वही हक़ है। वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के ID कार्ड उनके पास है, वो भी मीडिया का हिस्सा है और मीडिया को हमेशा मोहताज बनाया गया है। अफसरान बाला ने, चशम फरोशी ने हमेशा मीडिया के साथ गलत इक़दाम उठाए हैं, जिसकी मैं बहुत अच्छा एक और बात है, कई लोगों ने डमी है सिर्फ इश्तिहारात लोगों के लेते हैं, वो जो जैनुइन अखबार वाले हैं उनका तो हक़ मारा गया है, या जो जिनके पास डिक्लेरेशन है वो तो मर गए बेचारे। देखें सर, डमी और जैनुइन की बात तो गलत है। अखबार वही है जिसे DC इजाज़त देता है, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है, वो छपता है। अच्छा। अब वो रेगुलर नहीं है तो ये गवर्नमेंट की बात है कि वो उसको रेगुलर करे, लेकिन कम से कम जो प्रिंट आउट हो रहा है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो पॉलिसी गवर्नमेंट की उन बड़ों के लिए वही छोटों के लिए भी होनी चाहिए।